Would you ever imagine leaving Instagram for a whole year? Like actually deleting it? Not just a break, just gone. Sounds crazy, right? Well, I did it. In March 2024, I deleted Instagram and lived my life without it. No stories, no scrolling, no updates, just life as it is. In this video, we are going to cover topics like, first of all, why I left Instagram. ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी मेरे जीवन में कि मुझे Instagram को छोड़ना पड़ा. And secondly, what actually happened during that entire year. मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे मेरी life रही if I'm not on Instagram. And what you can do if you want to delete Instagram, not just from your phone, but from your life. And I will also share the story, a little snippet of why I'm currently back on Instagram. And with that, let's start the video. What the dog doing? Namaste, namaste, namaste. I, Anay Singh Raghuvanshi, welcome you all to a brand new video. Now, let's talk about why did I left. ये बहुत बड़ा decision होता है to just completely quit social media. और ऐसा भी नहीं था that it was on a break. It was me completely being vanished of Instagram for almost a year. और उसके पीछे काफी सारे reasons थे जो मैंने अपनी daily life में notice किया and I was like, this is so messed up and I need to immediately stop doing this. The first and important thing was it is such a time waste. Instagram is solely popular because of Reels, the short form content. वो short form content engaging होता है और algorithm push कर दिए ऐसी videos को जो आप बार बार देखो according to your interest. It's just not about what you want to see. It's about कि algorithm आपको क्या दिखाना चाहती है. And I realized कि मैं कितना सारा अपना precious time Instagram पे doom scroll करते हुए waste कर रही हूँ, which was not at all something that I wanted. मतलब आप दिन के 3-4 घंटे Instagram पे बिता देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है. So this was the most important thing जब मुझे समझ में आ गया था that I should be just leaving the space right now because of the constant time waste. And it just didn't feel right. I mean, there was a constant pressure of posting, of getting attention, of getting likes, of getting people viewing your story, getting followers increased, of constantly texting each other. It was just so much chaos in the life. And I just wanted my life to be pieced out, to be calm, to be relaxed, not just because I'm on my tippy toes and like, oh, I want to send this friend a reel, oh, this friend send me a reel, I need to reply back to it, oh, iska birthday है मुझे story लगानी पड़ेगी, oh, इसका ऐसे हो रहा है मुझे. It was a calm decision. आप Instagram पे नहीं हो तो everything is very calm. We will talk about what happened after I deleted Instagram because that's also another story. Everyone is just posting for likes, for numbers, for viewers, for attention, and that was making me sick because there was not genuine happiness. People wanted to share the moments of life. Not just that, it was constructive content on your feed. It was not the content of your friends, of your family, of the people that you would like to follow. It was the content of content creators that you are consuming. And I didn't wanted that. Most of the time there was always a fight, somebody hating something, red pill, blue pill, right wing, left wing. Everything was just wanted to be divided. You take it gender, you take it religion, you take it caste, you take it color, you take it races, you take it country to country. Everything, it was too much hate in the world. And I was like, I'm not ready for this type of content. And there's a one incident that happened between those 1 years was that Instagram was promoting violent content. I was not there, but I heard it from my friends. And I was like, okay, this might be for you, might not be with everyone. Then I called some of my friends and I'm like, is this really happening? Are you guys also seeing this type of violent content videos? Instagram was doing this with everyone because I could even see this violent type of content videos on YouTube, and people were talking about how Instagram is pushing these type of content, which is really bizarre to think about. And if you look into our lives, algorithm is basically controlling everything. There was not a trend of baggy jeans like 5 years ago. Instagram came in, the trends came in, and people wanting to copy and fit in those standards, which leads to people following these trends more and more because they see people around them doing the exact same thing. And honestly, there were a lot of unnecessary connections. It was almost like an artificial relationship कि मेरी friend है, उसकी कोई friend है, मैं उसको भी follow कर रही हूँ. The friends. It was just too much. And people that I don't even see every day. My classmates, कोई मेरे 3rd class में मेरे साथ था, कोई 8th class में साथ था, कोई 10th class में साथ था. And I don't connect to these people anymore. And it is very okay to cut off people from your life. But I took a step way further.
जस्ट रैंडम अपडेट्स ऑफ पीपल कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं यहाँ खा रही हूँ, मैं यहाँ पे गई थी, ऐसा हुआ था। लाइक आई डोंट वांट टू नो व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ, आई डोंट वांट टू नो व्हाट यू ईट इन ब्रेकफास्ट, आई डोंट वांट टू नो कि आप किस फ्रेंड के साथ कहाँ पर गए हो। ओके, you're शेयरिंग इट आउट ऑफ हैप्पीनेस, बट कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग स्टोरीज। और हम सबकी फॉलोइंग में कोई ना कोई एक इंसान ऐसा होता है जो अपनी पूरी जीवन कथा अपनी स्टोरीज पे सुना सकता है, बता सकता है कि मैं कहाँ गई, मैंने क्या खाया, मैंने क्या पिया, मैं कहाँ घूमने गई थी, किसके साथ गई थी, एवरी सिंगल थिंग। एंड इट वॉज जस्ट मेकिंग मी सिक कि भाई मत करो प्लीज, मुझे इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे नहीं जानना है। एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि मैं जिन लोगों से मिली नहीं हूँ, जिन लोगों से बात नहीं करती हूँ, प्रॉब्ली हमारी साल में एक साल में कभी बात होती है कि मैंने उस इंसान को बर्थडे विश कर दिया। आई एम अ नाइस पर्सन, आई माइट लुक रूड, बट अगर मुझे पता चलता है कि आपका हैप्पी बर्थडे है तो मैं आपको हैप्पी बर्थडे जरूर विश करूंगी, अगर आप मुझे करें या ना करें। सो जस्ट टॉकिंग ऑन बर्थडेज की, अच्छा हैप्पी बर्थडे, हाउ ओल्ड आर यू, आई एम दिस ओल्ड, देन बाय। ये सारी बातें होती थी, विच वॉज नॉट समथिंग जो आप रियल कॉन्वर्सेशन करते हो, किसी से आप जेनुअली फ्रेंडशिप है तो आप उनसे ऐसे थोड़ी बात करते हो। एंड वो जस्ट टू मच फॉर्मल, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि कोई एक इंसान है, कोई एक इंसान है, एंड इंस्टाग्राम एक्ट्स एज अ मिडिल मैन, कि मैं अपनी लाइफ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करी हूँ, ये इंसान अपनी लाइफ इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू इंस्टाग्राम, एंड विच इज नॉट हाउ रियल रिलेशनशिप वर्क्स, बिकॉज इंस्टाग्राम वॉज एक्टिंग एज अ मिडिल मैन इन द फ्रेंडशिप, सो देयर वॉज जस्ट नो रियल कनेक्शन। यू माइट ऑफन नोटिस दैट आपका और आपके बेस्ट फ्रेंड का इंस्टाग्राम बहुत ही ड्राई रहता है, लाइक यू प्रॉब्ली सेंड ईच अदर रील्स, टेक्स्ट पे शायद इतनी बात नहीं होती है, बिकॉज यू मोस्टली टॉक ऑन लाइक या तो वॉइस मैसेजेस करते हो या फिर सीधे कॉल ही मिला देते हो, तो 2 तो 3 घंटे बात होती है, बिकॉज दैट्स हाउ एक्चुअल रिलेशनशिप वर्क्स। सिर्फ इंस्टाग्राम पे हाई हेलो करने से, टेक्सटिंग करने से आपकी फ्रेंडशिप्स अच्छी नहीं हो सकती हैं। माइट साउंड हार्श, बट मैं जस्ट एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ हाउ ह्यूमन माइंड वर्क्स। मुझे समझ में आता है कि आपका किसी इंसान के साथ फिजिकली प्रेजेंट होना कितना ज्यादा जरूरी होता है in order to maintain a relationship. They say there is a specific time for someone in your life. But with Instagram, it makes it impossible for it to happen organically. मतलब अगर आपकी लाइफ में कुछ लोग किसी छोटे टाइम पीरियड के लिए ही उन्हें आना था, बट विद इंस्टाग्राम यू कनेक्ट विद देम, आप उन्हें फॉलो करते हो, वो आपको फॉलो करते हैं, यू एंगेज विद स्टोरीज, आपकी थोड़ी बहुत बात हुई, एंड इट वाज द टाइम फॉर दैट पर्सन टू बी आउट ऑफ योर लाइफ। बट बिकॉज आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप बहुत ही फालतू के मीनिंगलेस कनेक्शंस को लेकर बैठे रहते हो, और इससे आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, आप स्टोरीज देखे जा रहे हो, मतलब ही नहीं है, वो इंसान शायद आपके सेम सिटी में भी नहीं रहता है, सेम स्टेट में भी रहता है, आपकी कभी बात भी नहीं होती है। इट जस्ट अ लॉट ऑफ अननेसेसरी बर्डन ऑन यू टू मेंटेन दोज रिलेशनशिप्स जो कि बहुत ही ज्यादा वर्थलेस हो चुकी हैं। योर ओपिनियंस बेसिकली फेड अवे बिकॉज यू कॉन्स्टेंटली गो फॉर वैलिडेशन कि अच्छा मेरा ये ओपिनियन है अबाउट सर्टेन थिंग्स, कुछ भी हुआ कुछ भी नहीं हुआ, एनीथिंग हैपनिंग इन अराउंड सोसाइटी कंट्री में, तो आपका उस पर ओपिनियन होता है। यू गो ऑन इंस्टाग्राम और आप वहां पे जाके देखते हो कि कोई भी उस ओपिनियन को सपोर्ट नहीं कर रहा है, सो स्लोली यू जस्ट बी लाइक अच्छा ठीक है, मे बी आई वॉज द वन थिंकिंग रॉन्ग। बट वॉट इफ इट वॉज नॉट द केस? आप अपने ओपिनियंस को सप्रेस कर रहे हो बिकॉज आपको इंस्टाग्राम पे वैलिडेशन नहीं मिल रहा है। अदर रीजन ऑफ लीविंग इंस्टाग्राम कैन ऑल्सो बी बिकॉज ऑफ हेल्थ रीजन। आपकी आंखें कितनी ज्यादा खराब हो जाती हैं। आई नो अ टन ऑफ पीपल आफ्टर कोविड हु आर वेयरिंग स्पेक्स विच इन अ वे रिप्रेजेंट्स कि हम कितना ज्यादा स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, एंड इट इज लीडिंग टू आवर हेल्थ इश्यूज। हम किसी भी पोस्चर में कुरकुरे की तरह इधर उधर से कहीं से भी हम ऐसे झुक के, बैठ के, लेट के, एनी टाइम हम जस्ट स्क्रोल कर रहे होते हैं। एंड आई हैव सीन सो मेनी पीपल वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट लाइक इंस्टाग्राम पे रील्स चल रही है उनकी। इन केस अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है, हाउ वुड यू नो दैट अच्छा कुछ व्हीकल आ रहा है, मुझे साइड हो जाना चाहिए, बिकॉज यू आर सो मच कंज्यूम्ड इन व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन दैट यू फॉरगेट व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द वर्ल्ड। वही वाली बात कि हमें स्टोरीज लगानी है लेकिन हमें अपना लाइफ लिव नहीं करना है। एंड एवरी टाइम आई सी पीपल लाइक पोस्टिंग रियल टाइम स्टोरीज, इट जस्ट मेक्स मी लाइक अरे ऐसे तो मत ही करो। जस्ट अ बिग सिस्टर और लिटिल सिस्टर एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव कि इफ यू आर समवेयर, डोंट पोस्ट रियल टाइम स्टोरीज। अगर आप कहीं पर हो तो उस जगह से निकलने के बाद या 1-2 दिन बाद, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो अगर आप 1-2 दिन बाद भी या जस्ट आप उस जगह से बाहर निकलने के बाद स्टोरी, वीडियो जो भी आपको पोस्ट करना है आप करते हो, इट इज मच मोर बेटर, क्योंकि सेफ्टी रीजंस की वजह से भी ज्यादा जरूरी है। एंड यू गेट टू एंजॉय द मूवमेंट इन रियल टाइम। अब मैंने इंस्टाग्राम छोड़ा तो ऐसा तो नहीं है कि सब बहुत ही अच्छे से हो गया होगा। ऑफ कोर्स देयर वर चैलेंजेस, ऑफ कोर्स देयर वर थिंग्स दैट हैपेंड थ्रू आउट दैट 1 ईयर। तो अब हम जानते हैं कि उस पूरे 1 साल में ऐसा क्या क्या हुआ while I was off of Instagram। पहली चीज तो इट वॉज वेरी अनकंफर्टेबल, मतलब मेरा रिफ्लेक्सेस ही ऐसे हो चुके थे दैट आई वांटेड टू गो ऑन माय फोन एंड जस्ट जहां पे भी वो ऐप प्लेस था स्क्रीन पे, मैं वहां पे जाके टैप करती थी। तो हमारी मसल मेमोरी हो जाती है कि हमें आदत होती है कि अच्छा 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 ऐसे ऐसे हमें जाना है। बट देयर वाज अ टाइम जब मैं 2-3 बार ऐसे फोन खोला एंड आई वाज जस्ट सो मच इनटू हरी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया दैट दैट ऐप इज नॉट एनी मोर ऑन माई फोन। एंड आई रियलाइज कि मेरे पास कितना ज्यादा फ्री टाइम है। अब मैं क्या करूं?
कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिकॉज इंसान खाली दिमाग शैतान का घर होता है और हमें अपने आप को कंज्यूम कराने में, किसी चीज में हमारा टाइम जा रहा है, बिजी रखने में हमें अच्छा लगता है. सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि मैं अब क्या करूं, क्या करना चाहिए. मतलब ऐसा लग रहा था कि बस पर्पस ऑफ लाइफ इज एंडेड नाउ, बिकॉज आप कितनी देर ही पढ़ लोगे, कितनी देर ही आप दोस्तों से बातें कर लोगे, कितनी देर ही आप घूम के आ जाओगे. बट देयर वुड बी अ टाइम इन लाइफ कि आपको लगेगा कि अब मैं क्या करूं. एंड दैट्स व्हाट गिव्स यू लेवरेज कि आपके पास फ्री टाइम है टू डू एनीथिंग, टू पिक अप अ न्यू हॉबी, टू स्टार्ट राइटिंग, टू स्टार्ट पोस्टिंग, टू मेक कंटेंट. एंड दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड यूट्यूब, बिकॉज मेरे पास फ्री टाइम था और मुझे समझ में आया अनाया, you always wanted a phone. You got the phone, but you got so carried away to reels watching, to unnecessary doom scrolling, that you forgot your purpose, that you forgot why you always wanted this mobile phone. You wanted to make content, you wanted to speak up, you wanted to talk to people, you wanted to build a community. And now look at you, what you're doing. You're wasting your time, which I cannot let this happen to myself. And that's when I took control in my life and I was like, this is not happening. One thing I realized was your relationships get so much more better. Now, it's just not about real sharing. It's about you actually make an effort to knowing that person, that you value them. For example, किसी का birthday होता है, so what you do is you just text them happy birthday or post a story. That's it. मतलब बस इतना. But now, since I was not on Instagram, my first instinct was to tell that person कि वो मेरी life में matter करते हैं. It's not like I have a very big friend group. There are only just bunch of people that really matter to me, like the real friends. So मुझे सबको birthday wish नहीं करना था. And this is a rule that I have for myself कि if you don't have my contact number, we are not close enough. तो जिनके जिनके मेरे पास number थे, I used to take an effort to call them and to tell them how important they are in my life और कैसे उनका birthday बहुत ही special है. और just talking and catching up, कैसे life में ये चल रहा है, अच्छा ये चल रहा है, ये चैप्टर किया, ये पढ़ाई हुई, एनीथिंग अबाउट जो भी बच्चों के जीवन में चलता है, वी टॉक अबाउट दोज थिंग्स. नॉट जस्ट शोइंग द वर्ल्ड दैट वी लव ईच अदर, बट शोइंग आवरसेल्व्स दैट वी लव ईच अदर, दैट दिस फ्रेंडशिप मीन्स so much to me that I'm taking an effort out of my life calling you and telling you how much you matter. And this is bare minimum. You honestly feel liberated. एक टाइम के बाद आपको ऐसे लगने लगता है कि ये सब लोग कितने मूर्ख हैं. थोड़ी भावना में बह गई, बट मैं बताना चाह रही हूँ, किसी को आसपास अगर मैं देखती थी कि कोई रील्स पे देख रहा है, कोई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है और कोई जस्ट अकेला नहीं बैठना चाहता है, तो वो अपने रील स्क्रॉल कर रहे हैं. एंड आई वाज लाइक, नाउ आई फील जस्ट सो मच मोर रिलैक्स्ड एंड मैच्योर. और मुझे लगता है अच्छा, ये सब मोह माया है, इसमें ज्यादा फंसना नहीं चाहिए, ये सब बच्चों की चीजें हैं, अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ. नो मोर ओवर शेयरिंग. अब मैं किसी को नहीं बता रही थी स्टोरीज पे कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ गई, बिकॉज हम कभी कभी कैरिड अवे हो जाते हैं. और हम हम मैं भी कभी कभी हो सकता है, कभी कभी मैं बहुत ज्यादा ही ओवर शेयरिंग कर देती हूँ. इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी लगा दी कि मैं कहाँ थी, कहाँ क्या आ रही थी. मतलब people don't want to know any of this. You just want to make it feel like that you are seen. लोग आपको देखें, लोग आपको सुने. You want to be heard. एंड यू वॉन्ट टू लाइक एक्सप्रेस द थॉट्स ऑफ योर लाइफ कि आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या बिलीव्स हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजीज हैं. जो हम मीम्स, जो हम रील्स, जो भी हम पोस्ट स्टोरी पे शेयर करते हैं, वो एक तरीके से हम अपने थॉट्स को, हम अपनी लाइफ थॉट्स को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं दुनिया को कि ये हम सोचते हैं और हम उस पर वैलिडेशन पाना चाहते हैं, विच इज़ वेरी नॉर्मल बिकॉज दैट्स हाउ ह्यूमन्स वर्क. बट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मुझे नहीं वैलिडेशन चाहिए ऑन माई थॉट्स. माई थॉट्स आर हियर with me. And as I said, I started focusing more on YouTube. I didn't care about कि किसी को पता चलेगा कि किसी को नहीं पता चलेगा. A lot of you ever wanted to start a YouTube channel in their life. मतलब एक फेज हमारे जीवन में कभी ना कभी आता है कि हमें मन करता है, हम बहुत एक्साइटेड होते हैं कि अब तो हम मोटिवेटेड हैं YouTube चैनल स्टार्ट करने के लिए, बट वो कभी हो ही नहीं पाता बिकॉज वी गेट सो मच स्कैर्ड कि लोग क्या सोचेंगे. एंड बिकॉज मेरे जीवन में लोग ही नहीं थे, मैं कहीं जा ही नहीं रही थी, मैं सोशलाइज ही नहीं कर रही थी. ऑलमोस्ट फ्रॉम लाइक पास्ट 1 year आई हैव नॉट मेड एनी न्यू फ्रेंड इन माई लाइफ. जो भी मेरी पुरानी दोस्त थी, आई एम जस्ट फ्रेंड्स विद देम. नो न्यू पर्सन हैज एंटर्ड माई लाइफ इन दैट पास्ट 1 year. एंड डू आई रिग्रेट इट? नो आई डोंट. बट इट डजंट मीन कि मुझे बात करना नहीं आता, मुझे सोशलाइज करना नहीं आता. इट जस्ट मीन्स दैट आई एम कंटेंट विद द पीपल दैट आई हैव इन माई लाइफ. अभी शायद 12th क्लास मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं थी कि मैं वहां पे जाके नेटवर्किंग करूँ, सोशलाइज करूँ या नए दोस्त बनाऊँ. आई वॉज वेरी मच ओके विद बींग फ्रेंड्स विद द पीपल दैट आई वॉज ऑलरेडी फ्रेंड्स विद. एंड व्हेन यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि आपके पास इतना सारा टाइम है, तो आप उस टाइम में क्या करते हो. आप किसी इवेंट में गए, आप किसी पार्टी में गए, आप किसी फंक्शन में गए. इंडिया में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, किसी की शादी, किसी का फंक्शन, किसी का रिसेप्शन, किसी का कुछ, किसी का कुछ. और आप वहाँ जाते हो तो आप नोटिस करते होगे कि आप बहुत ऑकवर्ड हो जाते हो टू जस्ट सिट अलोन एंड डू नथिंग, ईट 5 स्टार एंड डू नथिंग. वहां पे हम रील स्क्रॉल करने लगते हैं. अगेन लाइक वेरी मसल मेमोरी थिंग, खाली बैठे हैं, क्या करें, करना है कुछ काम. वहीं पर इफ यू वुड टेक अ मूवमेंट एंड लुक अराउंड एंड फाइंड पीपल जिनसे आप एक्चुअल में रियल कॉन्वर्सेशंस कर सकते हो. थ्रू आउट दैट 1 year ऑफ माई लाइफ में कभी भी कहीं भी बाहर जाती थी, थ्रू एनी पार्टी, फंक्शन एटसेट्रा, मैं कॉन्शियसली डिसीजन लेके जाती थी कि मैं वहां पे जाके फोन बिल्कुल नहीं चलाऊंगी.
आई वोंट स्क्रोल, आई वोंट इवन ओपन कि मैं ऐसे एक्ट करूं कि आई एम डूइंग समथिंग बिजी, पता नहीं जैसे मैं कितनी कंपनीज रन कर रही हूँ, कितनी मीटिंग्स मेरी पेंडिंग है. आई वोंट एक्ट लाइक आई एम अ बिजी पर्सन. आई एम एक्चुअली देयर टू टॉक टू पीपल. एंड दैट रियली गेव मी अ रियलिटी चेक कि हम कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज और अच्छे लोगों से बात करना, हैविंग रियल मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस, उसको मिस कर देते हैं. आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल इन दिस 1 year. मतलब क्या आंटी, क्या अंकल, क्या बच्चे, क्या एनीवन, मैं सबसे बात करती थी. मेरे पास जो होता था मैं सबसे लाइक स्टार्टिंग हैविंग विद द स्मॉल टॉक, फिर हम बहुत सारी बातें करते थे. और नॉट जस्ट लाइक बात की अच्छा ट्रेंड में क्या चल रहा है, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, नॉट जस्ट द सर्फेस लेवल, लाइक टॉकिंग अबाउट लिटरेचर, टॉकिंग अबाउट बुक्स, टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एवरीथिंग, समथिंग लाइक म्यूजिक, डांस, आर्ट, कल्चर, क्राफ्ट, हेरिटेज, एनीथिंग जो भी इंटरेस्टिंग चीजें होती थी. और मैं कोशिश करती थी टू बी मोर ऑन द लिसनर साइड, कि मैं अपनी बातें कहने से ज्यादा उस इंसान से सुनूं. बिकॉज यूजुअली लोग मुझसे बड़े होते थे. आई रिमेंबर दिस वन कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विद दिस लेडी. शी was probably in her 30s and she was looking beautiful and she was just sitting right beside me and I just started having a small talk with her. You said we talked about anything and everything and I just felt like that I have a big sister because वो मुझे ऐसी advices दे रही थी. Anna, you should do this, sometimes this happen, you should don't take it seriously, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए. We talked about literature, जैसे मैंने बताया, books के बारे में, पढ़ाई के बारे में, spirituality के बारे में, about the stars, astrology, everything you said. और मेरा वहां से आने का ही मन नहीं हो रहा था because I find her so interesting and intriguing. और यहाँ पर मैं सिर्फ बोल नहीं रही थी, मैं उनसे उनका ज्ञान ले रही थी. एंड दैट्स हाउ यू बिकम मोर वाइजर, बाय लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस. एंड इट जस्ट मेड मी रियलाइज कि बीइंग प्रेजेंट इन लाइफ इज सो मच इंपॉर्टेंट. हम रूम स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हम फालतू में अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं ऑन सोशल मीडिया, यूट्यूब पे, या अगर आप शॉर्ट्स देखते हैं या इंस्टाग्राम पे, तो हम अपने लाइफ में प्रेजेंट होना भूल जाते हैं कि यहाँ पर आज जीना जरूरी है, रेदर देन गेटिंग योर पिक्चर्स क्लिक्ड, रेदर देन वॉचिंग द रील्स. आप कितनी चीजों को मिस आउट कर देते हो. फॉर एग्जाम्पल, आपके सारे कजन्स आए हुए हैं, आप लोग सब लोग इंजॉय कर सकते हो और सब लोग एक रूम में बैठे हैं. इट्स सो मच फन. आप ऊनो खेल सकते हो, आप गेम्स खेल सकते हो, आप बात कर सकते हो, आप कैचअप कर सकते हो, आप कुछ भी कजन्स के साथ कितना मजा आता है. बट वहीं पर आप डिसाइड करो कि नहीं, हम तो सब बैठ के आराम से फोन चलाएंगे, तुम मुझे रील भेजो, मैं तुम्हें रील भेजूंगी. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस. दिस इज नॉट राइट बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट इन योर लाइफ you would be left with just memories because सब बड़े हो चुके होंगे, सबकी फैमिलीज होंगी अलग अलग, पता नहीं कौन कहाँ, हो सकता है किसी ने कंट्रीज भी चेंज कर ली हो, and you would be left with just the memories. So why not be present and make good memories? And there was no FOMO inside of me that was left. I was like, अच्छा ठीक है, कुछ हो रहा है, हो रहा होगा. आई रिमेंबर दिस वेरी 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 क्लियरली कि जनवरी का टाइम था और 12th के उस टाइम पे प्री बोर्ड्स हो रहे थे, कहीं पर प्रैक्टिकल्स हो रहे थे, कहीं पर एग्जाम्स चल रहे थे, उस टाइम पे जेई भी चल रहा था. सो देयर वाज लॉट गोइंग ऑन, बट दैट वाज आल्सो द टाइम जहां पर सब बच्चे फेयरवेल्स कर रहे थे. एंड पीपल्स विद डमी स्कूल, पर कर्स होता है दैट यू डोंट एंजॉय फेयरवेल्स. एंड आई वाज अवेयर ऑफ इट. मुझे समझ में आ गया था, अच्छा फेयरवेल तो मुझे नहीं मिलेगी, सो नाउ व्हाट. बट जैसे हम प्रैक्टिकल्स वगैरह दे रहे थे, हम स्कूल में जा रहे थे, आई वाज मीटिंग लॉट ऑफ फ्रेंड्स और हम लोग सब लोग आपस में बात करते हैं. लॉट ऑफ देम वो लाइक, क्या फेयरवेल कर रहे हैं सब लोग, दे आर पोस्टिंग स्टोरीज, सब लोग साड़ी पहन रहे हैं, सब लोग ये कर रहे हैं, सब लोग वो कर रहे हैं. एंड आई जस्ट वांट टू डू दिस. हमारा डमी स्कूल है, हम कर नहीं पा रहे हैं, हम सिर्फ प्रैक्टिकल्स नहीं आते, हम टीचर्स को भी नहीं जानते, हम बच्चों को भी नहीं जानते. सो इट वाज सो मच हैपनिंग इन देयर माइंड्स. बट आई वॉज वेरी चिल एंड रिलैक्सड, नॉट जस्ट बिकॉज कि मुझे फेयरवेल करनी थी या कुछ, बिकॉज मैंने देखा ही नहीं ना, मैंने स्टोरीज ही नहीं देखी, मैंने देखा ही नहीं कि कौन कैसी साड़ी पहन रहा था, कौन कैसा पोस्ट कर रहा था, कौन कहाँ मजे कर. आई डोंट नो एनी ऑफ दैट. बट इट वॉजंट लाइक दैट आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ द साइड, आउट ऑफ द माइंड काइंड ऑफ पर्सन. नहीं, मेरे सामने था. आई वॉज एक्चुअली हेल्पिंग माई फ्रेंड्स टू पिक अप द साड़ीज, टू पिक अप द कलर्स फॉर देयर साड़ीज, टू पिक अप देयर ब्लाउज डिजाइन, टू पिक अप द ज्वेलरी दैट दे वर वेयर, टू द हील्स, टू एक्सेसरीज, everything. And I was there helping them. And there was not even a percent of FOMO inside of me. The wish that I had was obviously because सब ऐसे लड़कियां सोचती हैं कि that in 12th farewell I would wear a साड़ी. वो एक wish थी, but that wish was not to have a farewell, but just to wear a साड़ी. वो wish तो कभी भी fulfill हो सकती है. But what I'm trying to say here is that FOMO आपको कितनी सारी चीजें कराने में पुश करता है. मतलब आपका मन भी नहीं है, आपको करना भी नहीं है, बट जस्ट यू वांट टू डू दिस बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट. मुझे तो वैसे ही करना है जैसे वो करेंगे, कि मेरे दोस्त कुएं में कूदेंगे, मुझे भी कुएं में कूदना है. और वो यूजुअली आपके दोस्त होते भी नहीं है जो कुएं में कूद रहे होते हैं. यू आर जस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सन जंपिंग इन द वेल. एंड इट मेड मी इमोशनली मच्योर, विच माइट साउंड वियर्ड. जैसे मैंने बताया कि आपको थोड़ा सा ऐसे लगना था यू आर लिबरेटेड इन द सेंसेस कि आप जब बहुत ज्यादा स्क्रोल करते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, डोपामीन आता है. डोपामीन एक्चुअली मेक्स यू मोर अग्रेसिव. सो बिकॉज ऑफ दिस मैं इंस्टाग्राम नहीं चला रही थी. आई वॉज नॉट देयर. आई बिकेम calm. Not even that calm. I'm very self-aware. I am a little short-tempered. But comparatively how I was before a year,
the changes were seen visibly. So there was a very slight change in my behavior जो शायद मेरे आसपास वालों ने ज्यादा नोटिस किया, more than I could notice in myself, because हमें लगता है हम तो सब हमेशा ठीक ही हैं. So now if you want to quit Instagram, तो आप कैसे कर सकते हो? तो हम थोड़ा सा एक साल पहले जाते हैं. लेट्स टेक अ लुक इनटू माय सोशल लाइफ. सो इंस्टाग्राम बंद हो चुका था. बिल्कुल नहीं. इट वॉज नॉट लाइक कि मैं उसे बार बार एक्टिवेट करके उसमें चेक कर रही हूँ या मैं उसको क्रोम से खोल रही हूँ. इट वॉज गॉन, मतलब इट वॉज गॉन. इतना आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, विच इज इंपॉर्टेंट. तो आपको बार बार ऐसे नहीं करना है, जस्ट इन केस अगर आप सोच रहे हैं कि आपको भी ऐसे करना है तो. सेकेंडली, टॉकिंग अबाउट अदर प्लेटफॉर्म्स सच एज स्नैपचैट, आई वॉज नॉट ऑन स्नैपचैट सिंस आई गॉट माई पर्सनल फोन. मैंने स्नैपचैट नहीं यूज किया है, अगेन बिकॉज ऑफ फोमो. मुझे लग रहा था मेरे सब आसपास के मेरे दोस्त स्नैपचैट पे हैं, एंड बी सो मच कूल टू सेंड ईच अदर स्ट्रीक्स या जो नंबर्स वगैरह बनते हैं, पता नहीं क्या होता है. आफ्टर अ पॉइंट इन माई लाइफ आई रियलाइज कि what is this, because we are sending each other stickers or black screen और randomly दीवार की फोटो just to get this number, and what this number means. क्या मुझे इससे पैसे मिलेंगे? क्या ये मैं अपनी सीवी में ऐड कर सकती हूँ? क्या ये मेरे इंटर्नशिप के बराबर है? मतलब does it make any sense? It doesn't. स्नैपचैट पे तो मैं अभी 2-3 साल से नहीं हूँ. टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, यूट्यूब इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंस्टाग्राम. आई एम नॉट अ शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट कंज्यूमर. मुझे शॉर्ट फॉर्म इतना पसंद नहीं है. रादर देन कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो मुझे शॉर्ट फॉर्म पे देखना पसंद है, बट आई वुड से कि मोस्ट आई एम अ वेरी लॉन्ग फॉर्म टाइप ऑफ पर्सन. दैट्स व्हाई यू जस्ट सी लॉन्ग फॉर्म वीडियोज ऑन माई चैनल. आई ट्राइड शॉर्ट्स बट आई फेल्ट लाइक कि मेरी ऑडियंस शॉर्ट्स तो नहीं देख रही होगी. दे वुड स्पेसिफिकली वांट समथिंग मोर डिटेल्ड, समथिंग मोर रिसर्च और स्क्रिप्टेड. अच्छा कुछ कॉन्टेंट फील हो कि आपने हाँ कुछ देखा, rather than आपने अपने आधा घंटा ऐसे कहीं वेस्ट कर दिया. सो दैट्स व्हाई लाइक मुझे शॉर्ट फॉर्म नहीं पसंद था. तो मैं यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स नहीं देखती थी. तो मुझे ये पता था कि अगर मैं इंस्टाग्राम बंद कर दूंगी, सो इट्स नॉट लाइक कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स कंज्यूम करने लगूंगी. And YouTube is just a safe space for me. मतलब the channels that I've subscribed to, the people that I follow on YouTube are just very wholesome, and it just acts as a like a cozy hug that you need after a tiring day. और YouTube पे मैं कुछ भी ऐसा टॉक्सिक, ऐसा कुछ दिमाग हिला देने वाला मैं कुछ ऐसा नहीं देख रही थी. It was very peaceful content. कोई पॉडकास्ट हो गया, कोई व्लॉग्स हो गए, एंड नॉट लाइक द स्पेसिफिक व्लॉग्स दैट यू थिंक ऑफ. अरे उन वो वाले व्लॉग्स नहीं. मोस्टली दे वर लाइक फॉरेन क्रिएटर्स जिनके मैं व्लॉग्स देखती थी, एंड दैट वाज आल्सो लाइक वीकली व्लॉग. थिंग्स दैट आई यूज्ड टू वॉच वो मोस्टली लाइक सेल्फ इंप्रूवमेंट, रिलैक्सेशन, और कुछ भी एकदम किक स्टार्ट. इतना ज्यादा एडिटिंग और फास्ट पेस कंटेंट मुझे वैसे भी नहीं पसंद है. सो इस वजह से मुझे पता था कि ये भी मैं नहीं देखूंगी. सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ क्विटिंग इंस्टाग्राम, सो आई वुड कंसिडर आप सोशल मीडिया को ही एक बार क्विट करने की कोशिश करो. नॉट जस्ट इंस्टाग्राम, बट अगर आप स्नैपचैट पे हो, ट्विटर पे, और एनी अदर ऐप लाइक यूट्यूब. अगर आप यूट्यूब शॉर्ट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हो, बिकॉज हमें अपना पता होता है कि मुझे पता था कि मैं शॉर्ट्स नहीं देखूंगी, मैं देखती ही नहीं हूँ. तो मुझे पता था कि अगर मैं इंस्टाग्राम बंद कर दूंगी तो मैं ये नहीं देखूंगी. लेकिन अगर आप शॉर्ट्स देखते हो, आपको लगता है कि इंस्टाग्राम छोड़ने के बाद मैं शॉर्ट्स से एडिक्ट हो जाऊंगा, देन लीव यूट्यूब एज वेल. सो द फाइनल एडवाइस वुड बी, डोंट जस्ट टेक अ ब्रेक या अपने ऐप को हाइड कर दिया, जस्ट डिलीट इट कंप्लीटली. बिल्कुल खत्म, बिल्कुल बंद. डोंट जस्ट अनाउंस, जस्ट डिसअपियर. किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने इंस्टाग्राम बंद कर दिया. लोग 100 सवाल पूछेंगे, यार ठीक है ना यार, कोई बात नहीं यार, कर लेते हैं हम, रील्स नहीं भेजेंगे, हम बात नहीं करेंगे यार इंस्टाग्राम पे, तो यार सब दोस्त होते हैं. डोंट डू दिस, जस्ट डिसअपियर कंप्लीटली. किसी को इन्फॉर्म करने की, बताने की जरूरत नहीं है. आपकी भी मसल मेमोरी बोलेगी कि वापस आप फोन खोलोगे, आप वापस आपका मन करेगा इंस्टाग्राम जहाँ पे था उस स्क्रीन पे जाने का, मन करेगा कि मैं नाउ रिलैक्स. नहीं करना है मतलब नहीं करना है. यू शुड बी दिस मच सेल्फ डिसिप्लिन. अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम अज्यूमिंग यू आर फ्रॉम समवेयर अराउंड 16 to 24. इतना सेल्फ कंट्रोल तो इतने बड़े बच्चे में या इतने बड़े इंसान में होना चाहिए. फाइंड समथिंग न्यू, फाइंड अ हॉबी. कुछ भी आपको जो पसंद था, जो आप करना चाहते थे, जो आप करते थे बचपन में. एकदम रिकैप ले लो अपने बचपन का कि आप बचपन में क्या किया करते, कि क्या ऐसी चीज थी जो आपने पढ़ाई की वजह से, प्रेशर की वजह से, किसी भी वजह से जो चीज आपने करना बंद कर दिया. नाउ इट्स द टाइम टू पिक अप अ न्यू हॉबी एंड स्किल एंड डू इट. करो. आपको पेंटिंग पसंद है, आपको जर्नलिंग करना पसंद है, आपको गार्डनिंग पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, म्यूजिक पसंद है, एनीथिंग दैट यू लाइक, यू डू इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज अब आपके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होने वाला है. नाउ यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आप अपना फोन कम चलाने लगोगे. आप अपना फोन उठाओगे ही नहीं, बिकॉज द कॉन्स्टेंट थिंग जो हम सबसे ज्यादा चलाते हैं इज इंस्टाग्राम. और जब वो ही नहीं रहेगा, अपना फोन को बहुत ही इंटेंशनली यूज करोगे. एंड ऑल्सो कीप अ मॉनिटर ऑन योर स्क्रीन टाइम कि आप कितना ज्यादा चलाते हो, कितना ज्यादा नहीं चलाते हो. देखिए, इसको करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो गया है बिकॉज आज के टाइम में प्राइवेसी इज द की.
विराट कोहली ने क्यों इंडिया छोड़ दिया, वो क्यों लंदन में जाके रह रहे हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज क्यों मूव आउट कर रहे हैं, इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं बाहर, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा प्राइवेसी कितनी ज्यादा जरूरी। अच्छा ठीक है वो सेलिब्रिटीज हैं, क्योंकि उनके पास पैप्स होते हैं, उनको फोटोज क्लिक कर लेते हैं लोग, उनको अच्छे से रहने नहीं देते हैं बिकॉज ऑफ द सेलिब्रिटी बिहेवियर, जो हमारा ऑब्सेशन है उनको लेकर, वो समझ में आता है। बट प्राइवेसी इन योर लाइफ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, because I even feel like for myself that I'm here for a purpose, and when that purpose would be fulfilled, I might even disappear from social media. I might never post, never inform anyone कि अच्छा मैं जा रही हूँ, bye bye, goodbye, tata. I won't do this. I would just disappear with the blink of an eye, and you would be like, where is she? बट वो दिन अभी पास में नहीं है। बट मैं बताना चाह रही हूँ दैट इवन फॉर मी प्राइवेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंसान की प्राइवेसी जरूरी होती है, चीजें पर्सनल होती हैं। एक टाइम था जब हम किसी को बताते नहीं थे अपने बारे में, और अब एक ये टाइम आ गया कि हम इतने ज्यादा ओवर शेयर हो गए हैं, पूरी दुनिया में हम बताना चाहते हैं कि हम ये खा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। सडनली लॉट ऑफ पीपल आर लाइक कि मुझे एक पहाड़ों में घर चाहिए जिसके आसपास सिर्फ पेड़ हो, जो किसी को पता ना चले, जो बहुत अकेला हो, जिससे मैं किसी से बात ना कर सकूं। वाई? A little portion of why I'm back on Instagram again, because now I feel like I realize my boundaries much more better. मैंने कभी भी Instagram को ऐसे लीव किया था कि मैं अब दोबारा कभी आऊंगी नहीं। It was for a period of time कि मुझे फील हो रहा था कि मैं बहुत ही ओवर स्टिमुलेटेड फील करती थी, और मुझे लगता था कि मेरे पास टाइम ही नहीं है, when actually I was just doom scrolling. So मुझे बाउंड्रीज के साथ आई on Instagram. My real consumption I would say is from 0 to 10 if the scale is on 100. और मुझे लगता है मुझे समझ में आ गया कि मुझे क्या एक्चुअल में देखना है, क्या एक्चुअल में वर्दी है और क्या नहीं। Now I'm even more careful of the things that I post online. I just don't want it कि मेरी प्राइवेसी किसी भी तरीके से इन्वेड हो। I'm very careful कि मैं अपने बारे में कहीं पर हूँ, कहीं पर जा रही हूँ, कुछ खा, everything should be just looked upon. And I just like getting pictures clicked. और now just like you have an album, you have a place to show to your kids कि हाउ कूल योर मॉम वाज। और मैं अपना मेन इंस्टाग्राम इतना ज्यादा चलाती भी नहीं हूँ। यूजुअली मेरा जो प्राइवेट अकाउंट है उसमें मैं अपनी रील्स दोस्तों को भेज रही होती हूँ, उनसे बात कर रही होती हूँ, इफ इट इन केस इफ आई डू दैट। वरना मेन इंस्टाग्राम इज जस्ट टू हैव इट बिकॉज आई एम ऑन यूट्यूब, सो आई जस्ट डोंट यूज इट। इज जस्ट कि अगर इन केस अगर कभी अच्छी पिक्चर्स क्लिक हुई, सो आई कुड जस्ट पोस्ट इट, जस्ट दैट। यू नीड टू रियलाइज दैट इट इज अ टूल, नॉट अ लाइफस्टाइल। वो आपके बारे में पूरा नहीं बताता, बिकॉज नो वन पोस्टेड एवरीथिंग अबाउट देमसेल्व्स ऑन इंस्टाग्राम। द डेज दैट यू आर लुकिंग बैड, द डेज दैट यू आर सैड, द डेज आपका काम करने का मन नहीं करता, यू आर टायर्ड, यू आर एग्जॉस्टेड, आप बर्नड आउट हो। यू डोंट पोस्ट सच स्टफ ऑन इंस्टाग्राम। यू पोस्ट द गुड डेज, हैप्पी, जब आप खुश हो, जब आप एक्साइटेड हो, जब आपने कुछ अचीव किया, व्हेन यू आर सक्सेसफुल, यू पोस्ट दीज थिंग्स, गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज इट इज जस्ट अ हाईलाइट ऑफ योर लाइफ, not your whole life. Because now I am very particular of the people that I follow and watch. Now I just don't consume, I curate. I curate my own For You page. I'm like, okay, these are the people that I want on my For You page to be. This is how I want my feed to look like. I just don't want some random memes or random people just appearing, showing up. Algorithm is not in my hand, but the people that I follow is in my hand. So I'm very mindful of the things that I'm watching, the things I'm consuming. It shapes my opinions, it shapes my personality. So if you also feel like that you should just leave Instagram, so then this is your sign, a lady sent by a god on your screen. और जरूरी नहीं है कि हम हर चीज दुनिया को दिखाएं. Some things are just for us. और सुकून तब भी मिलता है जब आपको कोई देख नहीं रहा होता है। एंड विद दैट बीइंग सेड, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस होलसम वीडियो। इट इज जस्ट लाइक अ लाइफ एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, बिकॉज आई फील लाइक दैट हो सकता है यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, आप कुछ चीज चाहते हो या मोटिवेटेड टू डू समथिंग इन लाइफ। सो या इवन आई लेफ्ट इंस्टाग्राम फॉर अ पर्पस कि मुझे यूट्यूब पे कॉन्सेंट्रेट करना था, बिकॉज आई वाज जस्ट सो मच कंज्यूम्ड विद द स्टफ, रील्स एक्सेट्रा। तो आई हैव टू मेक दिस माइंडफुल डिसीजन। तो अगर आप ये भी करना चाहते हैं, एंड आई होप यू डू इट वेल, एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस वीडियो। आई विल सी यू गाइस इन द next one. Till then, bye bye. Take care of yourself and your loved ones. Jai Shri Ram.